ہم ایک آواز ہو کر خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. جی. اور ابیام اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا. اور شاہ اسرائیل کے ساتھ سلطنت کرنے لگا. اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی. اس کی ماں کا نام جو بھی سلوم کی بیٹی اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا. اس نے یہودیوں کو نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا. اور اس نے اپنی ماں میکا کو بھی ملکہ کے خطبے سے اتار دیا کیونکہ اس نے سیرت کے لیے ایک نفرت انگیز بنایا تھا. سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا اور وادی قرون سے اسے جلا دیا. لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے تھے تو بھی آسا کا دل بھر کر خداوند کے ساتھ تعلق رہا. اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھی اور وہ چیزیں جو اس نے باپ نے نظر کی تھی یعنی چاندی اور سونا اور زر سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا. خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. تشریف رکھیں. جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. مہربانی سے ایک آواز ہو کر آج کے مضمون کو دہرائیں. جی. پھر سے کہیں. آپ غریب نہیں ہیں بھائی. آپ میں سے کتنے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غریب نہیں ہیں؟ سو آج سے یہ رٹ لگانی چھوڑ دیں. حضری صاحب ہم تو بڑے غریب ہیں. آپ غریب نہیں ہیں بھائی. آپ بالکل بھی غریب نہیں. اور میں آج اس شام میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اور بائبل مقدس میں سے چند ایک ریفرنس دے کر اس بات کو سچا ثابت کروں گا کہ آپ غریب نہیں ہیں. آپ نہیں ہیں غریب. ہماری سوچ نے ہمیں غریب بنا رکھا ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ یہاں کا ہے. اور اگر آپ یہاں سے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا اور آپ کی سوچ بالکل بدل جائے گی کہ میں غریب تو نہیں، میں تو بہت رچ، میں تو بہت امیر ہوں. آپ کتنے امیر ہیں؟ میں آج کچھ ریفرنس دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ اس بنیادی سی بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرے اور آپ کے خداوند نے میرے اور آپ کے لیے دو کام کیے. پہلا کام، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تاکہ میں اور آپ بھرے جائیں. پنجابی چ نکو نک ہو جائیے. بول میری مچھلی کتنا پانی، اتنا پانی، اتنا پانی، اتنا پانی. برکتوں کے اتنے ڈھیر، اتنے ڈھیر اور پھر اتنے ڈھیر. برکتیں ہی برکتیں. دوسری بات یاد رکھیں، نئے عہد نامے کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح جو اگرچہ کہ لکھا ہے کہ دولت مند تھا لیکن میری اور آپ کی خاطر غریب بن گیا تاکہ میں اور آپ امیر ہو جائیں. اور اگر یسوع کے اپنے آپ کو خالی کرنے کے باوجود بھی اس کے
अपने आप में गुर्बत को लेने के बावजूद भी मैं और आप अमीर नहीं हुए, तो फिर मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मुझ पर और आप पर अफसोस भाई। आइए जरा 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सलातीन की दूसरी किताब में जब हम दाखिल होते हैं तो वहां एलिया के दौर में हमें एक बेवा दिखाई देती है। खुदा का बंदा उससे कहता है कि तू मुझे खाना खिला, मुझे रोटी दे, और वो खुदा के बंदे से कहती है कि देख, मेरे पास तो सिर्फ मुट्ठी भर आटा है और मेरे पास थोड़ा सा तेल है, और मैं अभी लकड़ियां चुन रही हूं, अब मैं घर जाऊंगी और उसके बाद हम रोटी बनाएंगे और रोटी खाने के बाद खाएंगे और खाने के बाद हम दोनों मर जाएंगे। बाइबल में यही लिखा है भाई। आप में से कितने हैं जिनकी कभी इस किस्म की कंडीशन हुई है कि आपने ये कहा हो कि जी मेरे पास तो सिर्फ एक वक्त का मुट्ठी भर आटा है, एक वक्त में एक बॉटल तेल की है, और पादरी साहब हम बस घर जाएंगे, खाएंगे और खाने के बाद फिर हम मर जाएंगे। इतनी गुर्बत। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी इस किस्म के हालात देखे हैं? बोले भाई, देखे हैं आपने इस किस्म के हालात? इन 17 महीनों के दौरान आपने इस किस्म की हालत देखी है? जवाब दें भाई। फिर गरीब तो सिखा देगा। आप तो खामखा में गरीब बने हुए। ऐसी हालत तो हुई नहीं जिस किस्म की हालत इस बेवा की थी, और जिसकी सोच ये है कि बस हमने एक वक्त का ये खाना खाना है और उसके बाद हमने मर जाना है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प बयान है, इतना वक्त नहीं होता कि मैं उसे पूरे तौर पर खोल पाऊं। एलिया ने इस खातून से एक बड़ा बड़ा सवाल कर दिया। आप इस हवाले को जाकर देखिएगा। एलिया ने, खुदा के बंदे ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली है, लेकिन तू मेरे लिए तो एक रोटी का टुकड़ा ला। तो सा खा के मर जाना है या नहीं मरना, वो मैनू ते रोटी दे ना, मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा ला। लेकिन मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि जब तू ऐसा करेगी तो इसके अफसाने में एक बहुत बड़ा मोजा होगा। खुदा ने आटे की मिल लगा दी और तेल का कुआं मां खोल दिया। जो ये कह रही थी कि हमारे पास एक वक्त का खाना है और उसके बाद खाकर हमने मर जाना है, इसी हवाले में लिखा है कई दिनों तक वो रोटी से सैर होते रहे, कई दिनों तक। खुदा के लिए बेदिल ना हो, खामखा अपने आप को छोटा ना किया करें। जिंदगी में ऊंच नीच होती है, कभी कुछ ज्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन जब कम हो जाए तो फिर अपनी आंखें खुदा की तरफ लगा लें, क्योंकि वो मोजज़ात का खुदा है। वो मोजज़ात का खुदा है और वो सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। वो जानता है कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं। जो ये कह रही थी कि बस एक वक्त का है, खाएंगे और खाकर मर जाएंगे, कई दिनों तक वो खाते रहे। एक और मिसाल, और ये भी बेवा की मिसाल है, जिसका जिक्र हमें दूसरी सलातीन के 4 बाब में मिलता है, जिसका शौहर खिदमत गुजार था, फौत हो गया। अब कर्ज खा इनके पास आता है और आकर थ्रेट करता और कहता है कि अगर तूने मेरा कर्ज ना दिया तो मैं
तेरे बेटों को अपने साथ ले जाऊंगा। गुर्बत की ये मारी खातून, इतनी मजबूर और बेबस ये खातून खुदा के खादिम के पास चली गई। ध्यान कीजिएगा भाई, वो खुदा के खादिम के पास चली गई है और खुदा के खादिम से कहती है कि मेरा शौहर तेरा खादिम था, हमारे साथ इस तरह से बुरा हुआ है और अब हालात बड़े बुरे हैं, कर्ज लेने वाला आता है, थ्रेट करता है और वो मेरे बच्चों को भी साथ ले जाएगा। पहले मैंने अपने शौहर को खोया है, अब मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। खुदा के खादिम ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे घर में एक बॉटल तेल है। कहा बस फिर अपने घर वापस जा, अपने नेबर्स जो हैं उनसे बर्तन रियायत ले और बर्तन कम नहीं होने चाहिए। बाइबल में यही लिखा है। अब ये तुझ पर डिपेंड करता है कि तेरे नेबर्स तुझे कितने बर्तन देते हैं और वो बर्तन किस साइज के होते हैं, तुझ पर डिपेंड करता है। लेकिन बर्तन कम ना लेना और फिर उन बर्तनों को लेकर अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाना, दरवाजा बंद कर लेना और तेल उंडेलना शुरू करना। क्या हुआ? अच्छा, कभी मेरे और आपके हालात भी ऐसे हुए हैं कि आपको आकर किसी ने इस हद तक थ्रेट किया हो कि जी अगर आपने रेंट ना दिया, अगर आपने गाड़ी की किस्त ना दी, अगर आपने ये ना किया, आपने वो ना किया, तो हम आपके बच्चे उठा कर ले जाएंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? तो फिर गरीब का दे, फिर तो आप गरीब नहीं है। फिर तो ये सोच का फर्क है। और आप जानते हैं कि तेल उस वक्त तक माकूफ नहीं हुआ जब तक एक एक बर्तन भर नहीं गया। और खुदा का करम देखें, ये एक बोतल तेल रखने वाली खातून जब खुदा के खादिम के पास गई, ये बिजनेस वुमेन बन गई। तेल बेचना शुरू कर दिया इसने और खूब ला देता खुदा ने, बिजनेस वुमन बन गई। कहां के जो कर्ज देना है वो भी दे और तेल बेच बेच कर खाओ, मौजें करो। आप यकीन जाने बाइबल का खुदा आपको इसी तरह की बरकत देने वाला खुदा है। लेकिन कई बार शायद आपको बड़े ट्रस्ट के साथ खुदा के खादिमों से बात करने की जरूरत है। आप बात तो करें खुदा के खादिमों से। और यकीन जाने कि आज भी मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मैं तो खादिमों में सबसे छोटा और खादिम कहलाने के लायक तक नहीं, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से खादिम हैं जिनके मुंह से जो कुछ निकलता है खुदा उसको ऑनर करता है। और मैं डर कर ये बात कहूंगा कि हम जिंदा कलीसियां हैं भाई। खुदा के खादिम के मुंह से और आपके मुंह से आज तक यहां से जो कुछ निकला है खुदा ने उसे ऑनर किया है। एक और मिसाल फिर बेवा की है। अच्छा, ये बेवाओं की मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये दुनिया में एक ऐसा तबका है जिसे इंतहाई बेबस और मजबूर समझा जाता है। तो तीसरी मिसाल फिर बेवा की है, और ये वो बेवा है जो हैकल के खजाने में कुछ डाल रही है और मेरा यीशु देख रहा है। इस बेवा के पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस वक्त आपकी जेब में 2 दिरहम हैं? आप में से कोई है जिसके पास 2 दिरहम हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप सिक्के नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि टोटल असासा आपके पास 2 दिरहम हैं। बोले भाई, आप में से कोई है जिसके पास 2 दिरहम हैं? तो फिर गरीब का दे, फिर तो नहीं गरीब। आपके पास तो 2 दिरहम से ज्यादा है। और अगर खुदा चाहता है कि आज जो कुछ है आप यहां डाल दें, तो आप में से कितने हैं जो तैयार होंगे?
लेकिन बरकत ऐਵੇਂ नहीं मिलती। खुदा चेक करता है कि हम कितने और कितने फीसद दयानतदार हैं। और बाइबल मुकद्दस की उस आयत को कभी ना भूलिएगा, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। आए अच्छे और दयानतदार नौकर, वेल डन, शाबाश। मजा तब है कि अगर जेब में 2 दिरहम हैं तो आप ईमान के साथ डाल दें, आज डाल दें ईमान के साथ। आपकी कंपनी के पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपको किस तनासुब से वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन मैं एक बात की गारंटी आपको देता हूं कि आपके मालिक और मालिकों के मालिक के पास बहुत कुछ है और उसके खजाने में आपके लिए बहुत कुछ रखा है। वहां किसी तरह की कोई कमी और कमजोरी नहीं। ट्रस्ट तो करें, लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा, होता क्या है, हम अगर खुदावंद को भी देते हैं तो हिसाब किताब करके देते हैं, हिसाब किताब करके कि कितना देना है। अच्छा, कई बार हननिया सफीरा की तरह फैसला भी कर लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि भलिए लोग ना को दे छड़िए, और फिर हम मुकर जाते हैं और डरते नहीं हैं कि हननिया और सफीरा के पलट जाने से उनके साथ क्या हुआ। वाइज की किताब में लिखा है कि मैं तुमसे कब कहता हूं कि आप कोई मन्नत माने, लेकिन वहां लिखा है कि जब आप कोई मन्नत माने तो फिर उसे पूरा करने में देर ना करें। अब इसको फिर ले आए नए अहदनामे में, जिसने जिस कदर अपने दिल में ठहराया है, चाहे 2 दमड़ियां, चाहे 4 दमड़ियां, चाहे 6 दमड़ियां, चाहे 100 दमड़ियां, जिसने जिस कदर अपने दिल में ठहराया है, देने वाला खुशी से दे, लाचारी से नहीं, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और कितनी बार हमने ये सीखा, लेने का राज असल में देने में है भाई। जिन्होंने रब खुदावंद को देना नहीं सीखा, उन्होंने रब खुदावंद से लेना भी नहीं सीखा। क्या मैं और आप देकर अपने रब खुदावंद को अपना कर्जदार कर सकते हैं? इमाल की किताब के 17वें बाब में लिखा है, तुम अपने रब खुदावंद को क्या दोगे, वो तो खुद तुम्हें जिंदगी, सांस और सब कुछ देता है। ज़बूर 51 में लिखा है, ज़बूर 50 और 51 में, कि जंगल का एक एक जानवर मेरा है, सब कुछ मेरा है। ज़बूर 50 में लिखा है, सब कुछ मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तो खुद तुम्हें जिंदगी, सांस और सब कुछ देता। तो 3 खवातीन मैंने आज आपके सामने रखी, जो बड़ी दुनियावी तौर पर बेबस और मजबूर थीं, लेकिन आप देखें कि किस तरह से कादिर खुदा ने उन्हें अमीर कबीर बना दिया। इस खातून को इस हवाले से कि उस वक्त यीशु के दौर में और भी बहुत सी बेवाएं थीं, लेकिन इस बेवा का नाम सुनहरे हरूफ में यहां लिख दिया गया। और मेरे यीशु के मुंह से निकला, जितने लोगों ने जितना डाला है, सबसे ज्यादा इस बेवा ने डाला है, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने अपने रब खुदावंद को दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे। मुश्किलात को प्यारे बच्चों बर्डन ना बनाएं, इसे बर्डन ना समझें। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और वाकई खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो इन मुश्किलात को अपॉर्चुनिटीज बनाएं, इसको मौका बनाएं कि आप तकलीफ की हालत में खुदा को दें और फिर देखें आपके साथ होता क्या है। दूसरी बात,
याद रखें कि आपकी मुश्किलात में आपका रब खुदावंद आपके साथ खड़ा है। वो दूर तमाशाई बनकर खड़ा नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है और वो जानता है कि इस वक्त आपकी जेब में क्या है, वो जानता है इस वक्त आपकी हालत क्या है, वो जानता है इस वक्त आपके हालात क्या हैं। अगर वो बेवा की 2 दमड़ियों को देख सकता है तो वो मेरे और आपके वॉलेट में जो कुछ है उसे भी देख सकता है। तीसरी बात, दुनिया ये सोचती है कि हर बार ज्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन ये तीनों हवाले सिखाते हैं कि कई बार कम होना भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है। चौथी बात, बरकत लेनी है तो फिर आपको बात माननी पड़ेगी। जहां अपनी पड़ोसनों से बर्तन ले ले, दरवाजा बंद करके तेल उंडेलना शुरू कर दे। तू मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा तो बना कर ला, फिर देखते हैं कि तूने और तेरे बेटे ने खा के मरना भी है कि नहीं। मेरे लिए तो लाना पहले। आप ओबे करें भाई, आप खुदा की बात को सुने, और जब आप खुदा की बात को सुनेंगे, ओबे करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा आपके लिए मोजज़ात करेगा। पांचवी बात, याद रखिएगा कि बाइबल का खुदा मुश्किलात में मेरी और आपकी पालना करना जानता है, और इन 17 महीनों में हमने फर्दन और खानदानी तौर पर इस बात का तजर्बा किया है। एक बेटी अभी मुझे आते हुए बता रही थी कि कादिर खुदा ने उसको ब्लेस किया और उसकी सैलरी में 2500 दिरहम का इजाफा हो गया। और मैं उस बच्ची को कह रहा था कि बेटिया 2500 थे मजदूर दी सैलरी नहीं, 2500 तो सैलरी नहीं। और अगर आपकी सैलरी में नए कॉन्ट्रैक्ट में 2500 दिरहम बढ़ गए हैं तो बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी बरकत है। ये मुश्किलात में बाइबल का खुदा आपकी परवरिश, मेरी और आपकी परवरिश करना जानता है। एलिया के साथ यह हुआ। आप जानते हैं कोरेत के नाले पर क्या हुआ। मैंने कई बार उस बयान को खोला है। आप जानते हैं कि किस तरह उसे एक बेवा के घर में भेजा गया और खुदा ने अपने बंदा की परवरिश की। आप जानते हैं कि वीराने में किस तरह से मेरे और आपके खुदावंद ने एक बार 4000 को और एक बार 5000 को सेव किया, जबकि शागिर्दों का कहना यह था कि हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने लोगों में ये क्या है, ये काफी नहीं होंगी। खुदावंद ने कहा मेरे पास ले आओ, और लिखा है 4000 और 5000 को शेयर किया और बच रहा। अच्छा, ये जो बच रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉलेट में 5 दिरहम भी मंथ के इख्तिताम पर बच जाएं, तो इसका राज ये है, आप देने के मामले में दयानतदार हो जाएं। रुपए पैसे की तकसीम जो है उसमें आप दयानतदार हो जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कभी ऐसा वक्त जिंदगी में नहीं आएगा कि आपका वॉलेट जो है वो खाली हो जाए। कभी ऐसा नहीं होगा। आप अमीर हैं भाई, आप बहुत अमीर हैं, इसलिए ये खामखा की गुर्बत जो है इससे बाहर निकलें, और यानी गुर्बत को पंजाबी च सेड़न की कोशिश ना करो। कई बार हम गरीब नहीं हैं, लेकिन हमने जानबूझकर अपने लिए ऐसे हालात बनाए हुए हैं कि गुर्बत को हम खुद दावत देते हैं कि वो आकर डेरा डाल दे। खामखा की गुर्बत को दावत मत दें भाई। और ये गरीब होने की मैंने शुरू में कहा, ये रट आज इस पैगाम के बाद छोड़ दें। आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके वॉलेट में सिर्फ 2 ही दिरहम हैं, तो आप तो बड़े जबरदस्त हैं भाई। 2 ही से तो काम बनेगा।
अगर आप समझते हैं कि आपके घर में सिर्फ एक वक्त का 1 किलो आटा ही पड़ा हुआ है, तो आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यहीं से तो बात बनने वाली है, यहीं से तो मोजज़ा होने वाला है। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में सिर्फ एक वक्त का ऑयल है और उसके बाद आप मजीद कुछ फ्राई नहीं कर सकेंगे, तो यहीं से तो काम बनेगा, यहीं से तो काम बनेगा। तजुर्बा करके देखिएगा, बाइबल का खुदा बरकत देने वाला खुदा है। और मैंने शुरू में कहा, उसने अपने आप को खाली कर दिया। हमारे खुदावंद ने अपने आप को गरीब बना लिया, अगरचे कि वो दौलतमंद था, ताकि मैं और आप अमीर हो जाएं। तो आइए फिर आज अपने यहाँ हाथ रख कर कहें, रखें हाथ, अपने यहाँ हाथ रख कर अपने आप से कहें, मैं बिल्कुल गरीब नहीं। फिर से कहें, मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूं, इसलिए कि मैं अपने रब खुदावंद का बेटा और उसकी बेटी हूं। कहें, और कलाम में लिखा है, वो अपने किसी बेटे या बेटी से, किसी रास्तबाज से, किसी दीनदार से, किसी अपने से, किसी नेमत को बाज नहीं रखेगा। आइए दुआ करें। तेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के आज इस नेगेटिव सोच को, इस नेगेटिव वाइब्रेशन को हमारे अंदर से निकाल बाहर कर और बख्श दे कि हम आज इस ख्याल के साथ तेरे घर से निकलें कि हम तेरे बेटे यस्सु में होते हुए अमीर हैं, रिच हैं, और उसने हमें तमाम तरह की नेमतों और तमाम तरह की बरकतों से सचमुच मालामाल कर रखा है। बख्श दे कि जो कुछ हमारे पास है उसे तेरे पास ले आए, क्योंकि खुदावंद तो उसी पर तो मोजज़ा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है, उसी से तो तू बढ़ाने की सलाहियत और कुदरत रखता है। हाँ खुदावंद, तो अपने बच्चों के लिए ऐसा कर, ऐसा कर, अपने बेटे यस्सु के नाम में, आमीन।